Hello, everybody. Namaskar. Good evening. I'm Dr. Mukesh Parik, and today I am live on Facebook. Kindly join and give some response so that we can start the class. I will later upload this class on my YouTube also. So there might be some students who are watching me right now who were there on my YouTube channel also yesterday. To give benefit to the maximum number of students, I decided to come to Facebook also. So I can see some of you now. Now let us start the class. Today, I hope that you are ready with your notebooks, because it's not some ordinary conversation which has been a trend recently on YouTube and Facebook, that some teachers come and they start talking. It is purely a class for study purpose. So I would like that you just respond me that you are ready with your notebooks. And kindly excuse me if I don't respond to your good evenings and namastes and all, because I understand that exchanging pleasantries is the first courtesy of educated people. But this time, I think the restriction of time, it restricts me to say and respond to your hellos and all. So write down in your notebook first of all. Yesterday, if you remember, I started with transcendentalism, and I also discussed in the 1 hour class that what were the circumstances under which certain people from Britain, they got shifted to America, and how American literature started, how the that colonial period started. Okay, so the first literature is called the colonial and the early national period. Write down. Just yeah. Kindly write down the colonial and early national period. It comprises 17th century to 1830. Write down the colonial and early national period that comprises 17th century to 1830. Okay. And the first European settlers of North America wrote about their experiences starting in the 1600 onward. Okay. And this was the earliest American literature. So suppose they ask you a question that which century particularly is or can be taken or which is responsible for the earliest literature in America, and that is the 1600. And then what kind of literature was written? So it was practical, straightforward, and often derivative of literature in Great Britain. So if you remember, in the 16th century, in 1600 or say 1601 means the starting of the 17th century. If you remember, Bacon was writing, then metaphysical poetry was, about to start. Jacobean theatre was going on. Theatre did not have the starting. Suppose they ask you a question that was theatre can theatre be included into the starting literature of America? Then the answer should be no, because the moment they got settled there, they started writing about their religious experiences, about their frontiership. Frontiership or frontiermanship is a kind of spirit where they had to face the nature, okay, the hardship of nature, the harsh nature, and people were also not friendly with them because they were settlers over there. So there must have been some tussle between the Aboriginal people in the America. मैं हिंदी बोलना भूल जाता हूँ बीच बीच में, मुझे हिंदी में भी बोलना है, ठीक है. कई लोग मुझे रिमाइंड करा देते, कई बार नहीं करा पाते हैं. ओके, बट आई विल बी continuing and switching over from Hindi to English and English to Hindi.
Kindly don't mind. So what kind of literature I was talking about? It was practical literature, it was straightforward, but mostly it was derivative of the literature which was written by that time in Great Britain. Okay, and most of the literature was focusing on future. So that was your first point. Okay, next, in its earliest days during the 1600s, American literature consisted mostly of practical non-fiction. So that can be a question. So you should write in your notebooks that the starting part of the American literature comprised non-fiction, okay, written by British settlers who populated the colonies. That would become the United States later on. That we already discussed in the YouTube class yesterday. Okay. Then I won't be able to answer Shankar Lal Sharma. Better you ask these kind of longer questions on my WhatsApp, okay? Because it is totally reincarnation and transcendentalism. There is nothing to do with, both the terms are different. Clear? Next, write down. I'll be enumerating the most important writers in the starting part of American literature. Write down John Smith. Why now John Smith is famous? There had been a question in our NET exam. So write down John Smith was an explorer and he wrote histories. Okay, the books of histories he wrote. So this is your first writer, John Smith. Okay, and he was an explorer. He was a president of the Jamestown colony. And today we remember him as a history writer of the settlers. Okay, and these history books were published from 1608 to 1624. And then suppose they ask you a question that out of the 4 writers, suppose they give you, because most of the students, when they don't pay attention to the American literature, वो क्या करते हैं, वॉल्ट विटमैन को, एमिली डिकिंसन को ही मेजर राइटर्स मानते हैं. तो हमें मालूम होना चाहिए कि जॉन स्मिथ का नाम जो है उस जो अर्लियर, और से आई वुड यूज द फ्रेज अर्लिएस्ट जो लिटरेरी राइटर्स उनमें यूज किया जाता है. उसके बाद में लिखिए नथानियल वॉर्ड एंड जॉन विंथ्रॉप. नथानियल वॉर्ड, NATHANIEL, नथानियल वॉर्ड एंड जॉन विंथ्रॉप. इन्होंने रिलीजियस बुक्स लिखी थी और इनका जो सेंट्रल कॉन्सेप्ट था, नथानियल वॉर्ड एंड जॉन विंथ्रॉप, आप कोई भी बुक उठाएंगे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की जिसमें अमेरिकन लिटरेचर दे रखा हो, तो आपको पता चलेगा कि इनका जो मेजर टॉपिक था वो था रिलीजन. ठीक है, आप लोग जो मुझे देख रहे हैं पहली बार, डोंट गेट सरप्राइज दैट हु इज दिस पर्सन. दिस इज माय फेसबुक पेज. I am Dr. Mukesh Parikh. I am 15-time NET qualified and 3-time JRF. I'm double MPhil, PhD. I have been running my own institute in Jaipur for last 20 years now. And we have been famous for giving best results in NET and JRF. Okay. And apart from that, those who are watching me first time, because before exam, I thought like, I should give benefit to the students because still I find that though the lockdown is no more in the earlier shape, but still it has thwarted students going to coachings and still I think we are in the bad shape. So I thought like I should come live. तो आप लोग क्या करें, एक तो प्लीज इसे वीडियो को शेयर कर दीजिए आप अपने, बिकॉज आई नो मैनी ऑफ यू, जब मैं आपको एंट्री देता हूं अपने फेसबुक पेज पे तो मैं देखता हूं कि यू पीपल हैव बीन मेंबर्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑल्सो. So if you really want to take help from me, then I think you should share me also so that you can help the other students. Okay? And you should subscribe to my YouTube channel. मेरा YouTube चैनल जो है उसका लिंक मैं इस पर शेयर कर दूंगा, और मुकेश पारिक के नाम से भी आप सर्च कर सकते हैं. इंग्लिश कॉस्मोस के नाम से आप सर्च कर सकते हैं. इंग्लिश कॉस्मोस मेरे इंस्टीट्यूट का नाम है. वी आर सिचुएटेड इन जयपुर एंड वेरी सून वी विल बी इन दिल्ली ऑल्सो. ओके, बिकॉज ऑफ द डिमांड ऑफ thousands and thousands of students from North India. चलिए, तो मैं नथानियल वॉर्ड की बात कर रहा था, थोड़ा मैंने अपना इंट्रोडक्शन भी दिया आज. एंड अच्छा, इंट्रोडक्शन के साथ मैं ये भी कह दूं कि बहुत से स्टूडेंट्स अभी भी कंफ्यूज्ड हैं, और हजारों स्टूडेंट्स ने मेरा स्टडी मटेरियल मंगा लिया है ऑलरेडी. रिटन स्टडी मटेरियल जो प्रिंटेड होता है, बहुत सारा स्टडी मटेरियल हम लोग देते हैं, और इसको आप मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और मुझसे बातचीत कर सकते हैं कि कैसे आप ये स्टडी मटेरियल मंगा सकते हैं. इससे हर बार बहुत सारे बच्चे नेट क्लियर कर जाते हैं. ठीक है, ये मैं दिखा इसलिए रहा हूं क्योंकि आई थिंक दिखाने से ज्यादा बेनिफिट होता है स्टूडेंट्स को. ठीक है, और हमारी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं. अब आ जाते हैं सीधे टॉपिक के ऊपर. नथानियल वॉर्ड एंड जॉन विंथ्रॉप का नाम लिख लिया होगा, ये क्वेश्चन नेट में आया हुआ है. इनका मेजर कंसर्न क्या था? कॉलोनियल अमेरिका एंड रिलीजन.
फिर आ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट राइटर की बात करते हैं, एन ब्रैडस्ट्रीट, नाम लिखिए अपनी कॉपी में, एन ब्रैडस्ट्रीट, ANNEBRADSTREET, एन ब्रैडस्ट्रीट। ये जो एन ब्रैडस्ट्रीट है, ये इतनी फेमस है बच्चों, इनकी एक बुक है बहुत फेमस, द 10th म्यूज लेटली स्प्रंग अप इन अमेरिका। You may write it down and kindly write yes if you are really attending the class. You are not just passing and watching me. If you are a serious student and you are writing, because मैं कल से रेगुलर लाइव आऊंगा फेसबुक पे, तो नाम लिख लीजिए, यस लिखकर मुझे बताइए that you are sincerely writing it. एंड ब्रैडस्ट्रीट, नाम लिख लिया। इनकी बुक का नाम क्या है? द 10th म्यूज लेटली स्प्रंग अप इन अमेरिका। ये पोइट्री की बुक है और ये 1650 में छपी थी। दिस इज द अर्लीस्ट कलेक्शन रिटन इन एंड अबाउट अमेरिका। इस पे हमको क्वेश्चन आ सकता है। हालांकि ये इंग्लैंड में पब्लिश हुई थी, अमेरिका में नहीं हुई थी, बिकॉज यू नो दैट प्रिंटिंग प्रेस एंड पब्लिशिंग फैसिलिटीज वर नॉट अवेलेबल बाय दैट टाइम। बट एन ब्रैडस्ट्रीट का नाम आपको याद रहेगा। उसके बाद है, आगे बढ़ते हैं, कि एक फेडरलिस्ट पेपर का नाम लिखिए, राइट डाउन फेडरलिस्ट पेपर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में। द फेडरलिस्ट पेपर्स, FEDERALIST, फेडरलिस्ट पेपर पब्लिश हुए थे 1787 से 88 के बीच में। ओके, अब आप कोई क्वेश्चन पूछेंगे कि किसने पब्लिश किए थे, तो नाम लिखिए, अलेक्जेंडर हैमिल्टन। अलेक्जेंडर हैमिल्टन, ये नाम बहुत फेमस है। जेम्स मैडिसन का नाम बहुत फेमस है, राइट डाउन, सेकेंड ऑथर who was responsible and instrumental in publishing these Federalist papers. पहली बार कई स्टूडेंट नाम सुन रहे होंगे, बिकॉज वी आर वेरी मच फेमिलियर विद द टर्म्स इन द ब्रिटिश हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, लेकिन हमें अमेरिकन लिटरेचर कभी सीरियसली किसी ने शायद नहीं पढ़ाया होगा, ठीक है ना। तो नाम लिख लीजिए, अलेक्जेंडर हैमिल्टन, जेम्स मैडिसन एंड जॉन JAY। ये यूनाइटेड स्टेट्स की पॉलिटिकल डायरेक्शंस तय करने वाले राइटर्स की कैटेगरी में आते हैं। ओके, तो मैं एक बार रिवाइज कर दूं शुरू से कि मैं आज जब से लाइव आया हूं मैंने कौन कौन से राइटर्स के नाम लिए। पहले मैं बता दूं कि जिनको कल का लेक्चर अटेंड करना है वो मेरे यूट्यूब पे जा सकते हैं, इंग्लिश कॉस्मोस टाइप कर लीजिए, यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए। वो लेक्चर मैंने वहां से अभी हटाया नहीं है। हम एक दो दिनों में क्या करते हैं, अपने जो लेक्चर्स होते हैं उनको अनलिस्टेड कर देते हैं, so that only those students who have paid us can see. बट अभी हम थोड़ा सा हेल्प के मूड में हैं, तो सभी स्टूडेंट्स को हम चाहते हैं कि वो 2-3 दिन तक अनलिस्टेड ना रहे और ज्यादातर स्टूडेंट उनको देखें और बेनिफिट उठा लें, ठीक है। तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट इन द स्टार्टिंग ऑफ द क्लास द कॉलोनियल एंड द अर्ली नेशनल पीरियड। ओके, ये 1700 से 1830 तक चला, ठीक है। और इसमें जॉन स्मिथ का नाम मैंने लिया, जिनको हम हिस्ट्री राइटर के तौर पर जानते हैं। सेकेंड वॉज नेथानियल वार्ड एंड जॉन विंथ्रॉप का नाम लिया मैंने बताया था कि ये रिलीजन की बुक्स के लिए फेमस माने जाते हैं। और एन ब्रैडस्ट्रीट का नाम अभी मैं बात कर रहा था, इनकी बुक का नाम पूछा गया एग्जाम में ऑलरेडी, द 10th म्यूज लेटली स्प्रंग अप। अच्छा, क्या कोई स्टूडेंट है क्लास में इस वक्त जो बता सकता है कि व्हाई द टाइटल इज 10th म्यूज? व्हाट अबाउट द अदर 9 म्यूजेस? So you must be knowing. Let me convert it into a rhetorical question and let me answer this question. 10th म्यूज का मतलब है कि ग्रीक माइथोलॉजी ने केवल 9 म्यूजेस की कल्पना कर रखी है। पता है ना आपको कि भाई पार्नसस जो पर्वत है ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर, जिसमें म्यूज ऑफ एस्ट्रोलॉजी, म्यूज ऑफ हिस्ट्री, म्यूज ऑफ पोइट्री, म्यूज ऑफ बहुत सारी चीजों की, आर्ट, पेंटिंग, इन सब की म्यूजेस रहती हैं, देवियां। तो उसमें इन्होंने अपने आप को 10th म्यूज कहा है कि मैं भी एक पोइटस हूं और मुझे म्यूज कहा जाए। फिर मैं फेडरलिस्ट पेपर की बात कर रहा था, जिसमें आई टॉक्ड अबाउट अलेक्जेंडर हैमिल्टन एंड जेम्स मैडिसन एंड जॉन जे, ठीक है। अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट राइटर की। आई एम टुडे टॉकिंग अबाउट ऑल द क्लासिक राइटर्स ऑफ अमेरिका, जिनमें से 100% आपको क्वेश्चन दिखेंगे, जैसे हमेशा दिखते हैं। जैसे पिछली लाइव क्लासेस के बाद स्टूडेंट्स ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स तो नेट ही क्लियर कर गए, उन्होंने रेगुलर मेरी वीडियोस देखी और कईयों ने स्टडी मटेरियल भी ऑर्डर किया था। और अब की क्लासेस में भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको काफी बेनिफिट हो जाए, ठीक है। अब आते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन, नाम तो बहुत सुना होगा आप लोगों ने। ही इज फेमस फॉर राइटिंग हिज ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, विच ही रोट ड्यूरिंग द 1770s and 80s। ये क्वेश्चन नेट में आया हुआ है, लिख लीजिए, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है। एंड व्हाई दिस ऑटोबायोग्राफी इज फेमस? बिकॉज autobiographies, autobiography as a genre started in England, but these settlers people also,
they were struggling to get settled in a very very strange atmosphere, environment. तो बेंजामिन फ्रैंकलिन की जो ऑटोबायोग्राफी है वो बहुत फेमस है, एंड ये टिपिकल अमेरिकन लाइफ को रिप्रेजेंट करती है और वो आज भी पढ़ी जाती है. मुझे अच्छी तरह से याद है, एक बार प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर मोदी अपने लेक्चर में इन द वेरी बिगिनिंग, when in 2014 he came to power, he was talking about Benjamin Franklin. तो ये बहुत कॉमनली पढ़े जाने वाली बुक्स की कैटेगरी में आती है बच्चों, ठीक है. उसके बाद एक नया राइटर लिखिए जो बहुत फेमस है. अच्छा, सभी स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि मैं यूज कर रहा हूं अमेरिकन लिटरेचर की नॉर्टन एंथोलॉजी. मेरे पास लगभग सभी जो मेजर नॉर्टन की जो एंथोलॉजीज होती है वो मैं यूज करता हूं नेट के एग्जाम के लिए. अगर मैं 15 बार कर सकता हूं और 3 बार जेआरएफ कर सकता हूं तो आप लोग भी कर सकते हैं. इट्स वेरी इजी एग्जाम. ये इजी एग्जाम उन्हीं बच्चों के लिए है जो थोड़ा सा हार्ड वर्क ज्यादा करते हैं और सिंसियर स्टडी करते हैं, ठीक है. फिलिस व्हिटले का नाम सबने सुना होगा, लिख लीजिए PHILLIS. फिलिस व्हिटले, WHEATLEY, फिलिस व्हिटले. आपको मालूम होना चाहिए कि फिलिस व्हिटले एक एबॉल्यूशनिस्ट के तौर पर फेमस है. एबॉल्यूशनिज्म का नाम मैंने कल की क्लास में लिया था. एबॉल्यूशन एक वर्ड है इंग्लिश में जिसका मतलब होता है एंटी स्लेवरी मूवमेंट, ठीक है. तो फिलिस व्हिटले क्यों फेमस है? एक अफ्रीकन वुमन थी बोस्टन नाम के शहर में, ठीक है. एंड शी वॉज अ स्लेव, शी वॉज एनस्लेव्ड रियली. और उन्होंने, शी वॉज द फर्स्ट अमेरिकन and she was a woman, and this book was the first American book, poems on various subjects, religious and moral. 1773 में बुक छपी है. लिख लीजिए इसका नाम, फिलिस व्हिटले. क्या नाम था बुक का? पोएम्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स, रिलीजियस एंड मॉरल, ठीक है. फर्स्ट अमेरिकन बुक रिटन बाय अफ्रीकन वुमन, ठीक है. और तो एक तरह से ये बहुत ही मतलब पोएम्स हैं ये. और दूसरी पोएट भी बहुत फेमस है, उनका नाम है फिलिप फ्रेनवॉ, FRENEAU, FRENEAU, फ्रेनवॉ, फिलिप फ्रेनवॉ, ठीक है. तो ये दो नाम आपको याद रखने हैं. एबॉल्यूशनिज्म लिख लिया आप लोगों ने. वी ऑलवेज गेट क्वेश्चंस ऑन एबॉल्यूशनिज्म, नॉट इन एवरी नेट बट इन ऑल्टरनेट नेट्स, ठीक है. उसके बाद में, अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इंग्लिश लिटरेचर में तो हमें मालूम है कि भाई देर आर 4 wheels ऑफ इंग्लिश नॉवल, देन हु रोट द फर्स्ट नॉवल, हु रोट द फर्स्ट ट्रेजेडी, हु रोट द फर्स्ट कॉमेडी. ये दीज आर वेरी कॉमन क्वेश्चंस. हालांकि वो आजकल इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं. आपको मालूम है नेट हैज बीन टर्निंग अगेन एंड अगेन इनटू एन एनालिटिकल काइंड ऑफ एग्जाम, ठीक है. बट फिर भी कभी कभी वो ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इन अमेरिकन लिटरेचर कोई आपसे ये पूछे कि भाई फर्स्ट अमेरिकन नॉवल कौन सा है, तो अपनी कॉपी लिख लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए फटाफट से. द फर्स्ट अमेरिकन नॉवल वॉज द पावर ऑफ सिंपैथी. फटाफट से लिखिए. द फर्स्ट अमेरिकन नॉवल वॉज द पावर ऑफ सिंपैथी बाय विलियम हिल ब्राउन. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है. मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि गूगल पे जो गूगल फॉर्म होते हैं उस पे मैं अपने जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं, उनको टेस्ट दिया करता हूं. 100 क्वेश्चंस मैं हमेशा देता हूं उनको, और वीक में एक टेस्ट हमारा हो जाता है और स्टूडेंट सारे हफ्ते उस पर रिसर्च करते रहते हैं. तो अगर आपको स्टैंडर्ड का टेस्ट चाहिए, और ऑब्वियसली वो पेड होगा, वो फ्री में हम नहीं देते हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं. मेरा नंबर आपको मालूम ही है, सबको. नहीं मालूम है तो आप ले लीजिएगा मुझसे, 9828402032, ठीक है. एग्जाम से पहले अगर आप 4, 5 या 6 टेस्ट भी मेरे आप अटेम्प्ट कर लेते हो सिंसियरली और उन पर रिसर्च कर लेते हो, मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत पड़ेगी. आपका नेट और जेआरएफ आराम से क्लियर हो जाएगा. चलिए, द पावर ऑफ सिंपैथी मैं दोबारा बोल देता हूं. विलियम हिल ब्राउन एक बहुत जाना पहचाना नाम है अमेरिकन लिटरेचर में. इनको, इस नॉवल को फर्स्ट अमेरिकन नॉवल होने का गौरव हासिल है, ठीक है. थोड़ा सा रेटोरिकल लैंग्वेज बोल दी हिंदी में मैंने. ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. विलियम हिल ब्राउन के बाद, अच्छा, ये पब्लिश हुआ था 1789 में. 1789, अब अंदाजा लगाइए, इंग्लैंड में तो ऑलरेडी बहुत सारी चीजें पब्लिश हो चुकी थी, एंड इंग्लैंड वाज हेडिंग टुवर्ड्स, अगर हम ये 89 में पब्लिश हुआ है तो आपको पता है 98 में तो रोमांटिसिज्म ही आ गया था वहां पे. ओके, लेकिन वहां पे ये पहला नॉवल लिखा गया था. अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम ले रहा हूं मैं. फिलिप व्हिटले के बाद में एक और इंपॉर्टेंट नॉवल है एबॉल्यूशनिज्म का मेरे पास, एबॉल्यूशनिस्ट का, वो है ओलाउडा एक्वाइनॉ. नाम लिखिए, थोड़ा अजीब है, OLAUDAH, ओलाउडा. ओलाउडा अजीब सा नाम है, OLAUDAH, ओलाउडा
इक्वानो, EQUIANO, ओके, EQUIANO, इनकी ऑटोबायोग्राफी बहुत फेमस है, ठीक है। ये भी एक ये बहुत फोर्सफुल आर्ग्यूमेंट है एबॉल्यूशन में। ऑलरेडी आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट एबॉल्यूशनिज्म इन योर क्लास फ्रेंड्स। एबॉल्यूशन मींस एंटी स्लेवरी मूवमेंट, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो ओलाउडा इक्वानो एक बार बोलो, अपने अपने घरों में बैठ करके आप देख रहे हो, एक बार ओलाउडा इक्वानो का नाम बोल के देखो। OLAUDAH लिख लो पहले, एंड देन यू कैन प्रोनाउंस इट, सो दैट हिंदी भी लिख सकते हो आप, सो दैट यू शुड नॉट मिस प्रोनाउंस द वर्ड। क्योंकि मैं कई बार ऐसे टीचर्स देखता हूं, एंड आई एम अशेम्ड ऑफ देम, कि वो मिस प्रोनाउंस बहुत करते हैं। और यहां तक कि बड़े बड़े जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर वो पढ़ाते हैं, बट द प्रोनाउंसिएशन इज नॉट ओके, एंड दैट इज समथिंग सीरियस इशू आई थिंक एज पर इंग्लिश इज कंसर्न्ड। भले आप हिंदी बोलो, लाइक आई यूज हिंदी, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि मैं महान हूं और वो नहीं, आई एम नॉट कंपेयरिंग, बट आई एम सिंपली सेइंग दैट वन शुड वर्क हार्ड ऑन द प्रोनाउंसिएशन। दैट इज समथिंग considered to be very serious issue in English. Okay, Olaudah Equiano, लिख लिया आपने, ऑटोबायोग्राफी है, द इंटरेस्टिंग नैरेटिव, 1789 में पब्लिश हुई। द इंटरेस्टिंग नैरेटिव 1789 was among the earliest slave narratives and a forceful argument for abolition. ठीक है, abolition जो है वो एक serious issue है। And if you go to England also, you will find that S.T. Coleridge was involved as an abolitionist writer. And the major argument is like all the American writers, as you know that in Transcendentalism, they were influenced by the romantic writers. और romantic writers जो हैं, थोड़ा सा सुनना चाहेंगे तो yes लिख दीजिए, तो मैं एक्स्ट्रा बोल देता हूँ, अदरवाइज मैं नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ऑब्जेक्टिव भी जा सकता हूँ। But on your request, I can be a bit subjective also, so that we can get a lot much knowledge. आप लोग कहेंगे यस लिखेंगे तो मैं थोड़ा सा सब्जेक्टिव हो जाऊंगा, मैं ज्यादा आपको थोड़ा खुल करके चीजों को बता दूंगा। आपका यस में आंसर अभी तक नहीं आया, इसका मतलब है यू वांट मी टू बी मोर एंड मोर ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ओलाउडा इक्वानो की ऑटोबायोग्राफी द इंटरेस्टिंग नैरेटिव 1789 में पब्लिश हुई थी। ये अर्लीस्ट स्लेव नैरेटिव मानी जाती है, एंड इट इज अ फोर्सफुल आर्ग्यूमेंट फॉर एबॉलिशन, ठीक है। अब आते हैं कि 19th सेंचुरी की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो कौन से ऐसे क्लासिक्स हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि अमेरिकन लिटरेचर का बहुत लिमिटेड पार्ट पूछा जाएगा, तो हमें बहुत ज्यादा टाइम भी इस पे नहीं देना है, ठीक है ना। चलिए, वॉशिंगटन इरविंग का नाम लिखिए, वॉशिंगटन इरविंग नेक्स्ट नाम। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं सभी स्टूडेंट्स के लिए कि मैंने अब तक कौन कौन से नाम लिए। देखिए, ओलाउडा इक्वानो का नाम लिया मैंने ऑटोबायोग्राफी के लिए, जिनका द इंटरेस्टिंग नैरेटिव फेमस है 1789 में। फिर मैंने फर्स्ट अमेरिकन नॉवल का नाम लिया था द पावर ऑफ सिंपैथी, विलियम हिल ब्राउन, ये भी 1789 में पब्लिश हुआ। फिलिप व्हिटले का नाम लिया था मैंने, जो कि फर्स्ट अफ्रीकन वुमन थी, एंड शी वॉज अ स्लेव, एंड शी रोट पोएम्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स रिलीजियस एंड मॉरल इन 1773। उनके साथ मैंने एक नाम और लिया था, फिलिप फ्रैनवो। फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन का नाम लिया था, उससे पहले मैंने उनकी ऑटोबायोग्राफी बहुत फेमस है। आई टोल्ड यू दैट मोदी इन वन ऑफ हिज लेक्चर्स, वन ऑफ हिज मन की बात ईदर और समवेयर फ्रॉम द प्रिसिंक्ट्स ऑफ Lal Killa, I think he said about this. He asked like one should read Benjamin Franklin's autobiography. Clear? And Federalist Papers I talked about, जिसमें मैंने अलेक्जेंडर हैमिल्टन का, जेम्स मैडिसन का और जॉन जे का नाम लिया है। पुराने पेपर उठा के देखेंगे तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि हाँ सर बिल्कुल सही चीजें बता रहे हैं, ये सब क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। उसके बाद में एन ब्रैड स्ट्रीट का नाम लिया था मैंने, जिनकी बुक है द 10th Muse Lately Sprung Up in America, 1650 में पब्लिश हुई, ठीक है। फिर नथानियल वार्ड एंड जॉन विंथ्रॉप का नाम मैंने लिया था, जिन्होंने रिलीजियस बुक्स लिखी है अमेरिका में। और उससे पहले मैंने नाम लिया था जॉन स्मिथ का, जो फर्स्ट हिस्ट्री राइटर के तौर पर फेमस है, ठीक है। तो ये कॉलोनियल पीरियड के अंदर हमने मोर देन 12 राइटर्स का जिक्र किया आज। मैं अब आ गया हूं 19th सेंचुरी या 18th सेंचुरी से, थोड़ा 19th सेंचुरी की तरफ बढ़ते हैं। 18th सेंचुरी से वॉशिंगटन इरविंग का नाम लिखिए फटाफट से, और यस लिखते जाइए ताकि मुझे पता चले कि सीरियस स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन कर चुके हैं। क्योंकि मेरा एक फेसबुक पेज ऑलरेडी है जिसमें मेरे फ्रेंड सर्कल के और फैमिली लोग भी जुड़े हुए हैं, जिसमें मैं अपने पर्सनल फोटोज भी शेयर करता हूं। मैंने ये क्लास वहां ना लेकर के मेरा जो पेज है नेट JRF 2021,
मैंने उस पे ये क्लास लेना आई डिसाइडेड, क्योंकि कम से कम इस पेज के ऊपर केवल स्टूडेंट्स जुड़े होंगे। ठीक है, चलिए। वॉशिंगटन इरविंग जो है, उन्होंने शॉर्ट स्टोरीज और एसेस पब्लिश किए थे, और वो बहुत फेमस है बच्चों। उनका द स्केच बुक ऑफ जॉफ्री क्रेयॉन, ये बहुत फेमस है, द स्केच बुक ऑफ जॉफ्री क्रेयॉन। ये 1819 और 20 में पब्लिश हुई थी, और इसके अंदर दो जो स्टोरीज हैं वो वर्ल्ड फेमस है, और इनको कहा जाता है कि दीज आर द अर्लीस्ट एग्जांपल्स ऑफ अमेरिकन शॉर्ट स्टोरीज, और वो है द लेजेंड ऑफ स्लीपी हॉलो। लिखें और बोल के भी देखें मेरे साथ साथ अपने घरों में, द लेजेंड ऑफ स्लीपी हॉलो। ये बहुत फेमस शॉर्ट स्टोरी है, और जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट है मेरे, या जिन्होंने ऑफलाइन मुझसे स्टडी मटेरियल मंगाया, उनको मालूम है कि मैंने उनको स्टडी मटेरियल में ये स्टोरी का डिटेल भेजा है। ठीक है, द लेजेंड ऑफ स्लीपी हॉलो। ठीक है, और सेकेंड स्टोरी और भी फेमस है, रिप वैन विंकल। रिप वैन विंकल, मेरे साथ साथ बोलोगे ना अगर, तो आपको बहुत सारी चीजें याद हो जाएंगी। और इसके बाद में आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल, तो आप इसको वहां पे जाकर 2 दिन तक ही अपलोडेड रहेगा वहां पे, और उसके बाद में हम इसको अनलिस्टेड कर देंगे, ताकि केवल जो पेड स्टूडेंट है वो इसको देख सकें। ठीक है, तो वॉशिंगटन इरविंग का नाम लिख लिया। आई टॉक्ड अबाउट 2 स्टोरीज, द लेजेंड ऑफ स्लीपी हॉलो एंड रिप वैन विंकल। ठीक है, ये अर्लीस्ट अमेरिकन शॉर्ट स्टोरीज की कैटेगरी में आती है। फिर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम, इफ यू आर रीडिंग काइंड ऑफ स्टूडेंट, देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स। वन इज जस्ट प्रिपेयरिंग, another one is always in a hurry, doing some job also, preparing also, and he wants like something he should get or she should get from somewhere, and then his exam should be clear. But there are other students also जो हमारे यहाँ आते हैं ज्यादातर, वो सब पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, जिनको जितना पढ़ा दो उतना ही कम लगता है। तो in some of my classes, very early I talked about this James Fenimore Cooper. नाम लिखिए, James Fenimore, James, James Fenimore, Fenimore, Fenimore Cooper, Cooper। इनके एडवेंचर नॉवल बहुत फेमस है, और ये फ्रंटियर मैनशिप की बात करते हैं। इनका एक हीरो बहुत फेमस है, हमारे नेट में क्वेश्चन आया हुआ है, इग्नू के अंदर भी ये सिलेबस में है। आपको पता है इग्नू के पोस्ट ग्रेजुएशन का जो सिलेबस है, या जो ग्रेजुएशन का सिलेबस है बच्चों, इग्नू को यूनेस्को का अवार्ड मिला हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ देयर कोर्स मटीरियल, द वे दे हैव प्लान्ड इट। तो उसमें भी ये नॉवल पढ़ाया जाता है, और उसमें जो नेटी बम्पो, नाम लिख लीजिए, नेटी बम्पो, हमें ये टिप्स पर याद है, आपको भी याद रखने चाहिए। नेटी बम्पो एक बहुत ही फेमस कैरेक्टर है फ्रंटियर मैनशिप का, और जेम्स फेनिमोर कूपर इंग्लिश लिटरेचर, अमेरिकन लिटरेचर के एक बहुत बड़े, इनके नॉवेल्स में ये स्ट्रगल दिखाते हैं जो एबॉरिजिने लोग होते हैं। एबॉरिजिने का मतलब क्या होता है, जैसे आपको मालूम है कि अमेरिकन, ये जो इंग्लैंड के लोग हैं, जब ये प्यूरिटन्स थे वहां पे सेटलर्स बनकर के गए अमेरिका में, तो ऑब्वियसली वहां के जो मूल निवासी थे उनको एबॉरिजिने बोला जाता है इंग्लिश में। ठीक है, उनसे इन्होंने वो लैंड ले ली, लड़ झगड़ करके, प्यार से भी ले ली, बहला फुसला के ले ली। देयर आर जिसको हम बोलते हैं चाणक्य नीति में साम दाम दंड भेद, हर तरीके का यूज करके अल्टीमेटली they displaced those people, and later on inherited them, and now they are dispossessed people, have been struggling very hard. They have no representation, thanks God, to the post-colonial literature, because in America also, in post-colonial literature, they have a very different studies of these aborigine people. जैसे हमारे यहाँ पे दलित लिटरेचर है, या जैसे आदिवासी लिटरेचर अब आजकल अलग तरीके से पढ़ाया जाने लगा है, या और भी बहुत सारे डांस फॉर्म्स हैं, फोक लिटरेचर है, रिलीजियस थिंग्स हैं, उनको हम पोस्ट कॉलोनियलिज्म में अब हम पढ़ने लगे, और धीरे धीरे उनका ट्रांसलेशन होने लगा है। थैंक गॉड के इंग्लिश लिटरेचर के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके अंदर भी बड़े बड़े प्रोफेसर्स को अब ये सद्बुद्धि भगवान ने दी है कि दे हैव बीन लुकिंग बैकवर्ड in the positive sense, and looking at the roots of India. चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। मैं जेम्स फेनिमोर कूपर को लेकर थोड़ा इमोशनल हो गया, बिकॉज अगर आप उसका एक भी नॉवल पढ़ लेते हो, या you read something about James Fenimore Cooper, then you would come to know that what kind of struggle he has shown in his novels. नेटी बम्पो बोल के दिखाओ एक बार, मेरे पास आवाज तो नहीं आएगी आपकी। And thank you very much, somebody is liking me a lot. Okay, that's so nice of you. I would love if you share this live stream, and so that many students can be benefited. समझ रहे हैं ना, लॉकडाउन का, पोस्ट लॉकडाउन का इफेक्ट अभी खत्म नहीं हुआ है। मुझे ये बात तब पता चली जब मुझे hundreds of students called me कि we want to come to you for offline classes, but we are unable to come, and live classes are not as good as they should be. तो they requested me कि आप
फेसबुक पे भी लाइव आओ, आप यूट्यूब पे भी लाइव आओ। और उन्होंने मेरा स्टडी मटेरियल भी जो हार्ड कॉपीज हैं वो मंगा लिया, उससे उनको काफी हद तक फ्यूचर उनका ब्राइट हो गया है। तो जिन्होंने अभी मुझे ज्वाइन किया है, मैं उनको बता दूं कि स्टडी मटेरियल आप भी मंगा सकते हैं। ये मत सोचिए देखो इतना सारा स्टडी मटेरियल हमारे यहां से मिलता है, और इसके लिए आप मुझसे रेगुलर कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि आपको ऑफलाइन क्लासेस का जो कमी है वो आपकी दूर हो सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखिए नेटी बंपो के बाद में आपको मालूम, अच्छा इनका मैं एक नाम बताना भूल गया, ये लेदर स्टॉकिंग टेल्स फेमस है इनकी, लिख लीजिए। इनके नॉवेल्स को लेदर स्टॉकिंग टेल्स कहा जाता है, ये क्वेश्चन नेट में आया हुआ है, लेदर स्टॉकिंग टेल्स। मैं ऑलरेडी कह चुका हूं कि मैं आपके हेलो के जवाब नहीं दूंगा, अदरवाइज माई अटेंशन विल बी डाइवर्टेड, एंड वो जो डाइग्रेशन है वो बहुत खतरनाक होता है स्टडीज पर्पस के लिए। ठीक है, तो लिखते जाइए। मैं जेम्स फेनिमोर कूपर की बात कर रहा हूं, जिन्होंने नेटी बंपो नाम का कैरेक्टर क्रिएट किया है। और फ्रंटियर, ये फ्रंटियर मैनशिप में समझा रहा था थोड़ी देर पहले कि फ्रंटियर का मतलब समझते हो ना, बाउंड्री के। कई बार क्या होता है कि जब कोई भी कॉलोनियल ताकत, इंपीरियल ताकत, कोई भी ऐसी ताकत जो आपके ऊपर कंट्रोल करना चाहती है, तो देर आर सर्टन पीपल हु रेजिस्ट those who boldly say no, and they struggle। तो उस चीज को किस तरह से कंट्रोल किया गया, उस तरह के नॉवेल्स, और इसको लेदर स्टॉकिंग टेल्स कहा जाता है। ठीक है, और ये अमेरिकन विल्डरनेस बहुत दिखाया, उनकी मूवी भी देख सकते हो आप, देखोगे किस तरह से अमेरिकन विल्डरनेस। देखिए कैनेडियन और अमेरिकन लिटरेचर में जो मुझे बिल्कुल नहीं जानते हैं, मैं उनको बता दूं कि मैं पीएचडी हूं ऑलरेडी, और मैं 15 टाइम नेट हूं, 3 टाइम जीआरएफ हूं। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं, ये मत देखिएगा कि ये अपने बारे में बार बार क्यों बता रहा है। इसका कारण है कि बहुत से बच्चों को पता ही नहीं है। कुछ ऐसे लोग सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव हो रखे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लॉकडाउन से पहले मैं आई वॉज वेरी मच सेटिस्फाइड विद माई ऑफलाइन क्लासेस, एंड मुझे थोड़ा पब्लिसिटी पसंद कम है, तो मैं कम बोलता हूं अपने बारे में। लेकिन अब मुझे बच्चे जिद करते हैं कि सर अपने बारे में बताया करो आप क्लास के दौरान, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता चले। ठीक है, चलिए, तो मैंने अपने बारे में बताया। मैं ये बताना चाह रहा था कि अमेरिकन नॉवल आप, मुझे नहीं लगता कि कोर्स के अलावा आपने कोई पढ़ा होगा, लेकिन अगर आप लेदर स्टॉकिंग टेल्स पढ़ोगे ना, तो आपको एक बहुत ही ज्यादा एक तो रियलिस्टिक व्यू नजर आएगा आपको, कि क्योंकि अमेरिका और कनाडा, क्योंकि मैं बात अपने बारे में इसलिए क्या बैठा बीच में कि मैं बताना चाहता था कि माय पीएचडी इज ऑन कैनेडियन लिटरेचर। मैंने मार्गरेट लॉरेंस पे पीएचडी किया है। तो मार्गरेट लॉरेंस जो है वो भी कैनेडियन, मैं कल बता रहा था आपको कल की क्लास में कि हाउ कैनेडा वाज आल्सो अ कॉलोनी अर्लियर ऑफ अमेरिका, ब्रिटिश पीपल। सो जब कनाडा इससे अलग हो गया, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि कनाडा भी कोई बहुत ईजी नहीं है, विल्डरनेस है वहां पे। तो वहां के लोग और अमेरिका के जो लोग हैं, उनके जो फर्स्ट सेटलर्स थे, फर्स्ट सेटलर्स समझ रहे हो ना, मैं इसको समझाता हूं आपको कि कोई भी फैमिली जो पहली बार सेटल होने गई, और वो प्यूरिटन्स लोग होते थे, प्रेस्बाइटेरियन उनका रिलीजन होता था। ये एक हार्ड और हार्श किस्म के लोग होते हैं जो ये मानते हैं कि आपको स्वर्ग तभी मिलेगा जब आप हार्ड वर्क करोगे। कई बच्चों को ये बात समझ नहीं आती है, जिस एज में हम जी रहे हैं बिल्कुल सुविधाओं के साथ, उनको कई बार समझ नहीं आता कि कैसे कोई आदमी इतनी बर्फ में जाकर के अपने फैमिली के साथ रह लेगा और सस्टेन कर लेगा, सरवाइव कर लेगा, और ऊपर से लिटरेचर भी लिख देगा। तो मैं इसका एक तरीका बताता हूं आपको कि आपको ना कभी ये जो ट्रेडिशनल बनिया क्लास होती है, वाणिज्य जो संभालते हैं, पता है ना भारत डिवाइडेड है ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र में। तो थैंक गॉड टू कॉन्स्टिट्यूशन की काफी चीजें चेंज हो गई हैं, लेकिन फिर भी जो ट्रेडिशनल बनी होते हैं, आप उनको कभी देखिएगा, जो गद्दी संभालते हैं, अपना गल्ला संभालते हैं, दुकान पर बैठते हैं, आप उन्हें देखेंगे सुबह से लेकर शाम तक तपस्या, एक तपस्वी की तरह अपनी गद्दी पर बैठे हुए। अब आपको उनके पेट निकल जाते हैं, लेकिन आप वो गद्दी नहीं छोड़ते, कभी नोटिस कीजिएगा आप। तो मैं आपको ये बात इसलिए समझाना चाहता हूं कि मेरा इंस्टीट्यूट जहां चलता है, उनके नीचे एक मतलब जिनका वो इंस्टीट्यूट है, मतलब ऊपर जो मैंने ले रखा है, नीचे वो अनाज की दुकान है। तो वो जो सुबह सुबह अंकल आ जाते हैं, बुजुर्ग 80 ईयर्स की एज है उनकी, और उनके दोनों लड़के, और वो दे आर वेरी रिच, फिल्दी रिच, छोटी सी अनाज की दुकान चलाते हैं। और मैंने उनको नोटिस किया कि वो सुबह काम करने लगते हैं, मैं फिर भी शाम को 7 बजे या 8 बजे इंस्टीट्यूट की सारी क्लासेस खत्म करके जब निकलता हूं, तो मैं देखता हूं कि दे आर स्टिल सिटिंग देयर and still selling out their sacks of wheats and maize and millet and what not। तो मैंने एक दिन उनसे पूछा कि भाई आप इतना हार्ड वर्क कैसे कर लेते हो? तो उन्होंने कहा कि हमारी कुलदेवी लक्ष्मी होती है,
हालांकि हर एक की कुलदेवी अलग अलग होती है, 9 हमारे यहाँ पे आपको पता है 9 देवियां हैं। तो आई एम सो सॉरी डाइग्रेस कर रहा हूं थोड़ा सा, लेकिन ये आपको समझाएगा कि प्यूरिटन कौन होते हैं, फ्रंटियर मैनशिप क्या होती है, कैसे अमेरिकन लोग अपना सुख सुविधा छोड़ करके और एक ऐसे विल्डरनेस में चले गए और वहां पे एक ऐसा अच्छा सा देश बसाया उन्होंने। ये बेसिक बात है, क्योंकि मैंने उसमें पीएचडी किया है, तो मुझे हमारे टीचर्स ने कहा, भाई हमको पहले बहुत पढ़ने के लिए कहा जाता था 20 साल पहले, 15 साल पहले, तो जब हम कोई आंसर नहीं दे पाते थे तो हमें फिर से लाइब्रेरी भेज दिया जाता था कि तुम वो वाली बुक पढ़ो, फिर उसके नोट्स बना के लाओ, फिर दिखाओ, ताकि तुमको एक कैरेक्टर का एक डायलॉग समझने के लिए हमें 10-10 बुक्स पढ़ने के लिए कहा जाता था। तो नतीजा ये है कि हमें बहुत सारी चीजें इशारे में भी समझ में आ जाती हैं। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि प्यूरिटनिज्म जो है वो कैल्विनिस्टिक फिलॉसफी पर है, जिसमें लैटिन बाइबल वल्गेट का ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से फ्रांस में किया गया, जिसमें जॉन कैल्विन ने ये बताया, जो मैं कल की क्लास में भी बता रहा था, मैं नए स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूं, कि उन्होंने कहा कि भाई सब लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे, एडम और ईव की जो संतानें हैं, केवल हार्ड वर्किंग लोग जाएंगे, या जो प्री डेस्टिन्ड है जिनके लिए लाइफ में, कि गॉड ने पहले से ही कुछ लोगों को फिक्स कर रखा है कि इनको हेवन में ले जाएंगे। तो अब वो नाम नहीं बता रखा गॉड ने, तो आपको हार्ड वर्क करना है उनको खुश करने के लिए। तो अब अंदाजा लगाइए, जिसके लिए रिलीजियसली हार्ड वर्क ही सब कुछ हो, कि अगर वो हार्ड वर्क नहीं करेगा, प्योर नहीं रहेगा, एंटरटेनमेंट से दूर रहेगा, राजा के खिलाफ रहेगा, क्योंकि डिविनिटी गॉड के बीच में और उसके बीच में कोई नहीं आना चाहिए, नहीं तो स्वर्ग छिन जाएगा। दैट काइंड ऑफ फिलोसफी, रिलीजियस फिलोसफी, जो मिल्टन थे, आपको अंदाजा लगाइए मिल्टन की। मैंने अभी कुछ दिन पहले अपने फेसबुक पे, अपने यूट्यूब पे ऑन हिज ब्लाइंडनेस सोनेट को समझाया है और उसको अपलोड किया है कि क्यों उस पर बार बार क्वेश्चंस आते हैं, लगभग सभी पीजीटी में, टीजीटी में, नेट में, सेट में, प्री पीएचडी में, गेट में। क्योंकि ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो मिल्टन की पोएम है, मिल्टन एक प्यूरिटन थे, और आपने देखा होगा कि वो आदमी 8-8 भाषाएं जानता था। उसको चैन नहीं है, कुछ करना है। और ऑन हिज 23rd बर्थडे में भी वो यही बात कर रहे हैं कि मुझे बहुत कुछ करना है, और अभी मैं अंधा कैसे हो सकता हूं, या मैं अभी मेरे दाढ़ी मूछ नहीं आई, लेकिन मुझे बहुत कुछ करने के लिए पैदा किया भगवान ने। इसका मतलब है प्यूरिटन लोग जो होते हैं वो हार्ड वर्किंग हुआ, उन्होंने अमेरिका को बसाया, समझ गए? तो इसका मतलब है कि वो विल्डरनेस में भी रह सकते हैं। उनको ऐसा लगेगा कि ये विल्डरनेस भी गॉड ने हमारे लिए क्रिएट किया है, और ये एडम और इव के पाप की सजा हमको भुगतनी है। अल्टीमेटली वी हैव टू बेयर द ब्रंट। तो ये फिलॉसफी उनकी रिलीजियस रही है। इसीलिए क्योंकि आप लोग अमेरिकन लिटरेचर की हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, बट मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि मैं अमेरिकन लिटरेचर का जो बेस है लेकर के बैठा हूं अपने हाथ में, और उसको पढ़ करके ही आपको पढ़ा रहा हूं, ताकि आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन आए। मेरे पढ़े लेक्चर्स में से 99% क्वेश्चंस आते हैं। उसका यही कारण है कि बेसिक चीजें पूछते हैं वो एग्जाम में, टफ चीजें नहीं पूछते हैं। टफ उनको लगती है जो बेस नहीं पढ़ते। ठीक है, अब एक बार यस लिख के बताइए, आप लोग सुन रहे हैं कि मुझे कुछ शक्लें दिख भी रही है, नहीं भी, क्योंकि ऑनलाइन मोड इज ऑलवेज टिपिकल, यू नो। अब रोमांटिक पीरियड पे आ जाइए, 1880 टू 1870। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट आया हुआ है कि अमेरिका का रोमांटिक पीरियड कब से शुरू होता है। आपको मालूम है इंग्लैंड का रोमांटिक पीरियड तो शुरू होता है 1798 से, है ना, और विक्टोरियन एज की स्टार्टिंग तक उसको मान सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो रोमांटिक पीरियड है अमेरिकन लिटरेचर का 1830 टू 1870, 50 ईयर्स का हम लोग मानते हैं। ठीक है, तो इस रोमांटिसिज्म में जो सबसे इंपॉर्टेंट राइटर हम मानेंगे, ट्रांसेंडेंटलिस्ट राइटर्स की बात तो मैं कल कर ही चुका हूं। वॉल्ट विटमैन है, एमरसन है, ठीक है, थोरू है, बहुत सारे और भी राइटर्स की बात हमने कल की थी। और आप लोग जो मुझे पहली बार देख रहे हैं वो जाकर के मेरा यूट्यूब चेक करें, उसमें कल का लेक्चर आप जरूर देखें। आइए अब नया राइटर लिखिए, एडगर एलन पो। एडगर एलन पो was a poet also, was a critic also. He was a detective. He was considered to be the first writer who started writing the detective stories in America. ठीक है, तो इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट स्टोरी लिखी थी, वहां से ये जॉनरे स्टार्ट हुआ, ऐसे कहा जाता है। द मर्डर्स इन द र्यू मॉर्ग, लिखिए, द मर्डर्स इन द र्यू, RUE, र्यू MORGUE, मॉर्ग। ये 1841 में पब्लिश हुई थी। ये डिटेक्टिव स्टोरी है। इस स्टोरी की खास बात क्या है, देखिए, द कास्क ऑफ अमांटिलाडो या कि टिकटॉक हार्ट, और बहुत सारी ऐसी स्टोरीज इन्होंने लिखी हैं, जो जैसे द पर्लॉइंड लेटर बहुत फेमस है। जितने भी मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट उनको मालूम है, मैं इनको ये सब चीजें पढ़ा चुका हूं। और गूगल जो मैं उनको फॉर्म में पेपर देता हूं, उसमें भी मैंने ये क्वेश्चंस पूछ रखे हैं। लेकिन अब लास्ट मोमेंट में जब हम पढ़ रहे हैं, लास्ट 30 डेज के लिए एग्जाम से पहले, तो उसमें आप
कोई ये क्वेश्चन आ सकता है कि वो कौन सी स्टोरी थी एडगर एलन पो की। मुझे कुछ और भी याद आ रहा है, मैं बता दूं आपको। देखो, जो विल्की कॉलिंस का द मून स्टोन है ना, जो इंग्लैंड के राइटर है, तो विल्की कॉलिंस का द मून स्टोन है, उसको पढ़ करके और टी एस एलियट ने कहा था कि एडगर एलन पो नहीं है एक डिटेक्टिव स्टोरी के फादर। मुझे ऐसा लगता है टी एस एलियट बोले कि विल्की कॉलिंस है, क्योंकि विल्की कॉलिंस ने जिस तरह से मून स्टोन लिखा, जिस तरह से उन्होंने अपनी स्टोरीज के अंदर डिटेक्टिव कॉन्सेप्ट को दिखाया है ना, तो ऐसा लगता है कि टी एस एलियट ने उनकी तारीफ की। लेकिन फिर भी we always know that they ask us questions from the people who are considered to be the starters of something, or the pioneers of something, the harbingers of something. So Edgar Allan Poe का नाम आता है। मैं फिर से स्टोरी का नाम बोल रहा हूं, द मर्डर्स इन द र्यू मॉर्ग, 1841 में। अच्छा, फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट इनकी पोएम है, मुझे फुर्सत मिलेगी तो मैं पढ़ा भी पाऊंगा, बट फुर्सत मुझे नजर नहीं आ रही है। द रेवन, 1845 में। नेवर मोर करके उसका एक रिफ्रेन बहुत फेमस है। उसमें क्या दिखाया है कि एक मतलब एक रेवन, जानते हो ना, एक पक्षी होता है, और पेलास नाम के गॉड की एक घर के बाहर मूर्ति लगी हुई है, उस पर आकर वो बैठ जाता है। एक लवर है जो बहुत ज्यादा उदास है, और कैसे उसके मन की बात को इस पोएम में लिखा गया है। बहुत ही ग्लूमी डिपिक्शन ऑफ लव इसमें दिखाया गया है, ठीक है। एंड इसमें इसका मीटर भी डिफरेंट है, इसको ट्रॉकिक मीटर में लिखा गया है, कहीं कहीं इसमें आयम्बिक पेंटामीटर का यूज किया गया है, ठीक है। और थोड़ा सा बीच बीच में, बिकॉज दैट समहाउ a lover who is depressed, or someone who is melancholic, will be talking about very eerily at times, okay. So mythological references are there. Edgar Allan Poe is considered to be the master of creation. तो इनकी द रेवन 1845 की बहुत फेमस पोएम है, एंड आई हैव सीन क्वेश्चंस ऑन रेवन मोर देन 10 टाइम्स इन नेट एग्जाम्स, ओके। फिर इसका व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट डिफरेंट स्टोरीज, आप एक स्टोरी का नाम लिख लीजिए, 2 स्टोरीज लिखिए जो बहुत ही ज्यादा ग्रिपिंग है, और उनके अंदर बिल्कुल ब्लड कडलिंग एटमोस्फेयर, गॉथिक एटमोस्फेयर दिखाया है इन्होंने। एक का नाम है द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ अशर, 1839, द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ अशर, ओके, 1839, एंड द कास्क ऑफ अमांटिलाडो। इसमें एक पेंटिंग का रेफरेंस आता है, इसके अंदर एक घर दिखाया है जिसके अंदर एक बहन भाई रहते हैं, फिर किस तरह से बहन की डेथ हो जाती है और बहन को उस के अंदर ही कहीं पर बैरी कर दिया गया, दफना दिया गया है। ये फ्रेंड जो है वो रहने के लिए आता है उसके साथ, फिर कैसे लास्ट में घर गिर जाता है, ये जान बचा के वहां से भागता है। तो स्टोरी लाइन तो आपको समझ में नहीं आएगी कि ये क्या कहना चाह रहा है, बट समहाउ it is considered that he wanted to go deep into the psychology, the psychic recesses, the deep psychological malaises of human civilization. Through his characters he's talking about all these things. अब वो इतना ज्यादा मैं टफ बोलना नहीं चाहता हूं, आप सिर्फ इतना समझ लो कि नेट के एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, द मर्डर्स इन द र्यू मॉर्ग इनका फेमस है, द रेवन इनका फेमस है, द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ अशर 1839 में पब्लिश हुई, द कास्क ऑफ अमांटिलाडो एक शराब के ब्रांड का नाम है, ठीक है। और उसके बाद आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक जो 1830 के बाद का पीरियड है अमेरिकन सोसाइटी में, वो किस तरह की, जैसे अभी हम 46 तक की बात कर रहे हैं, ठीक है, अमेरिकन रोमांटिसिज्म में। उसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम आता है, बच्चों लिखो, जेम्स रसेल लॉवेल, ठीक है। ये बहुत ही फेमस राइटर की कैटेगरी में आते हैं, लिखिए जेम्स रसेल लॉवेल। बीच बीच में इफ यू राइट यस, आई वुड फील वेरी ऑनर्ड दैट माई स्टूडेंट्स आर रियली, though some of you are not my students, but like students, you are attending the class and you are getting benefit from my class. And I yesterday also requested that those who watch me, ज्यादातर स्टूडेंट लंबे लेक्चर्स नहीं देखते हैं, तो इसका मतलब है कि वो लूजर्स होते हैं। लंबा लेक्चर जो नहीं देखेगा, इसका मतलब है कि वो यूट्यूब को स्टडी पर्पज से यूज नहीं कर रहे हैं, है ना। बिकॉज ये जो वीडियो है, दिस विल बी अपलोडेड ऑन माई यूट्यूब चैनल, और उसको डबल बेनिफिट होगा। लाइव क्लास अटेंड करने के बाद में अगर वो यूट्यूब पे दोबारा देख लेता है तो कितनी खुशी की बात है कि उसको बैठे बिठाए इतने काम के लेक्चर मिल जाएंगे। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि मैं बहुत महान लेक्चर दे रहा हूं, बट आई एम सिंपली सेइंग दैट स्टिल आई एम केटरिंग टू द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है।
तो फटाफट से जेम्स रसेल लॉवेल का नाम लिख लीजिए। मुझे केवल एक स्टूडेंट ने यस लिखा है, इसका मतलब है बाकी के लोग स्टिल दे आर वेरी सरप्राइजिंगली अटेंडिंग to my lecture. They're saying like who this person is giving lectures. When I'll be coming regular, you will understand the importance and worth, okay, and stature, my stature in this field. James Russell Lowell, okay, ये ह्यूमर यूज करते थे, डायलेक्ट एंड वर्ड्स एंड प्रोज सब कुछ मिक्स करके लिखते थे। और जेम्स रसेल लॉवेल का नाम लिख लिया, ये केवल ऑप्शन में पूछा जाएगा। उसके बाद मैं बहुत इंपॉर्टेंट राइटर के नाम ले रहा हूं। आपने कभी हेनरी वैड्सवर्थ लॉन्गफेलो का नाम सुना है क्या? हेनरी लिखो, हेनरी वर्ड्सवर्थ नहीं बोल रहा हूं, वैड्सवर्थ, WADSWORTH, ठीक है, हेनरी वैड्सवर्थ लॉन्गफेलो एंड ओलिवर वेंडल होल्म्स। बोल ली मेरे साथ साथ, हेनरी वैड्सवर्थ लॉन्गफेलो, बोलने से आपको याद रहेगा, ठीक है, एंड ओलिवर वेंडल होल्म्स। जो सीरियस स्टूडेंट हैं, सीरियस हैं, बहुत सारे स्टूडेंट सीरियस होते हैं, वो वापस से इस वीडियो को चेक करेंगे। मैं फेसबुक से तो इसको शायद हटा लूं और यूट्यूब पे इसको अपलोड कर दूंगा मैं। वो उसको दोबारा देखें एक बार, सारी चीजें दोबारा सुने, अपने नोट्स चेक करें, सिंसियरली क्लास अटेंड करें, ठीक है। दैट इज अ ड्रॉबैक कि मैं आपको कोई बोर्ड नहीं दिखा पा रहा हूं क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि दैट इज नॉट फीजिबल हियर राइट नाउ, ठीक है। सो हेनरी वैड्सवर्थ लॉन्गफेलो एंड ओलिवर वेंडल होल्म्स का नाम लिख लीजिए। ये अपर क्लास ब्राह्मण्स इनको कहा जाता है। अब आप कहोगे कि ये ब्राह्मण कैसे हो गए? हाउ कम अमेरिकन्स बी कॉल्ड ब्राह्मण्स? वी कॉल देम बोस्टन ब्राह्मण्स, फ्रेंड्स। You must not be knowing, most of you must not be knowing that after this, देखिए इंग्लैंड में तो right from the beginning there were two categories of people. One were called Occidentalists and the other were called Orientalists. The people who valued the Indian scriptures and the Indian knowledge. And in America also, like Walt Whitman, if you remember, Walt Whitman on the starting of the Suez Canal wrote Passage to India, and then he was considering the Americans and the European people lucky that now they can very easily go to the realm of those people who were considered to be the first receivers of the wisdom of Vedas and Upanishads. So don't consider it like the word Brahmin I'm using it here, that Henry Wadsworth Longfellow एंड ओलिवर वेंडल होल्म्स। मैं फिर से अंग्रेजी बोलने लगे, आई एम सो सॉरी, मैं बीच में मिक्स कर दूंगा। मैं बता रहा था कि जो लॉन्गफेलो एंड ओलिवर होल्म्स है, ये क्यों ब्राह्मण्स कहलाते हैं? क्योंकि इन लोगों ने बोस्टन ब्राह्मण्स का एक कैटेगरी एस्टैब्लिश किया। वो बिल्कुल हिंदुस्तान के जो ब्राह्मण वर्ग के लोग होते हैं, कैसे होते हैं? अब आजकल के ब्राह्मणों की बात मत कीजिए, आजकल हम कोई भी ब्राह्मण जैसा रूल फॉलो नहीं करते हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं करता हूं, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट द अदर पीपल। But you know that ultimately the Brahmins were the people who devoted their life to know the Brahma, okay, the ultimate reality, the oversoul. तो वो लोग साफ सफाई से रहते, केवल अध्ययन का काम करते, समझ रहे हैं ना आप लोग? तो उन्होंने अमेरिका में जाकर के उस चीज को फॉलो किया, ठीक है, और उन्होंने अपनी सेंसिबिलिटीज एंड अपने इंडियन मॉडल्स को दुनिया में पहचान दिलाई। तो इस तरह से आपको पूछ सकते हैं दैट हु out of the following are called the Boston Brahmins. So Henry Wadsworth मैं बार बार कह रहा हूं कि the spelling of this is not Wordsworth but Wadsworth, WADSWORTH, okay? ये दो नाम मैंने बोल दिए। उसके बाद आप आ जाइए, yesterday already we have talked about transcendentalists, and Emerson was a member, David Thoreau was a member, Margaret Fuller was a member, Walden Pond was a member, Dial Magazine उन्होंने स्टार्ट की थी। ये सब हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ठीक है। अब आते हैं, लिखिए the three novelists who are very famous in not three novelists, two novelists and one poet. नथानियल हाथॉर्न का नाम लिखिए। नथानियल हाथॉर्न पे क्वेश्चन आया था कि नथानियल हाथॉर्न का जो सरनेम है हाथॉर्न, in that he added extra W. ये क्वेश्चन आया हुआ है। आप लोग एक बार इस पॉइंट को फास्ट लिख लीजिए एंड देन डू सम रिसर्च ऑन इंटरनेट दैट व्हाट इज रॉन्ग विद द स्पेलिंग ऑफ नथानियल हाथॉर्न्स surname, because as I was talking about Salem witch trial in America, तो उसके जज में पार्टिसिपेशन किया था, जज के तौर पर हाथॉर्न के ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर ने।
तो आपको मालूम है कि आज उस बात को बहुत ज्यादा नेगेटिवली देखा जाता है कि विच ट्रायल हुआ, विच हंट हुआ, विच को जिंदा जलाया गया। और द स्टार्टिंग पार्ट ऑफ अमेरिकन पीपल, दे वर क्वाइट सुपरस्टिशियस पीपल ऑल्सो। तो होता है ना कई बार, जैसे अभी हमको बड़ी शर्म आती है कि हमारे पूर्वजों ने कैसे जात पात में भारत को बांटा। हमें बड़ी शर्म आती है, क्योंकि जब हम दलित लिटरेचर पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यार इतनी भी ज्यादती हुई होगी किसी के साथ में, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरह से हाथॉन को भी ऐसा लगा कि उसको he wanted himself to disinherit himself with the name his ancestors had, so he changed the spelling. Clear? ये क्वेश्चन आया हुआ है। फिर हरमन मेलविले जो है, आपको मालूम है बच्चों, हरमन मेलविले की बात मैं ऑलरेडी कल कर चुका हूं। तो एक तो मॉबी डिक के लिए फेमस है ये, और एक इनकी शॉर्ट स्टोरी बहुत फेमस है। लिख लीजिए, द मोस्ट फेमस शॉर्ट स्टोरी ऑफ हरमन मेलविले, दैट इज द स्कैवेंजर। जहां तक मेरा मुझे याद है, इनकी जो शॉर्ट स्टोरी उसका नाम है द स्कैवेंजर। लिख लीजिए, द स्कैवेंजर। ये एग्जिस्टेंशियल शॉर्ट स्टोरी है। और तीसरे राइटर जो रोमांटिक पीरियड में अमेरिका में ट्रांसेंडेंटलिज्म में फेमस है, उनका नाम है वॉल्ट व्हिटमैन, जो हम ऑलरेडी बात कर चुके थे कल। अब मैं नथानियल हाथॉर्न के बारे में बात करता हूं। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी मुझे बात करनी है, याद आ रही है, वेयर नथानियल हाथॉर्न। अच्छा, आपको एक क्वेश्चन आएगा कि नथानियल हाथॉर्न का क्या एटीट्यूड था ओल्ड अमेरिका के बारे में। तो आपको याद है, द मोमेंट वी स्टार्टेड दिस लेक्चर आई वाज टॉकिंग अबाउट दैट the settlers in America, they were Puritan people, okay? And Puritans means they were very strict people regarding their religion, okay? They were by God, they were fundamentalists. And तो आपको मालूम है कि हरमन मेलविले कहीं ना कहीं या हाथॉर्न की बात कर रहा था, सॉरी, हाथॉर्न जो है वो अमेरिका के इस पास्ट को उतना पसंद नहीं करते थे। तो उन्होंने जो एक नॉवल लिखा था, इफ यू रिमेंबर, that was Scarlet Letter. So if you remember Scarlet Letter, you will be surprised to notice that how he has depicted that woman, Hester Prynne, and her daughter Pearl, and Dimmesdale, and that husband of this Hester Prynne, नाम याद नहीं आ रहा, डिमिसडेल तो शायद वो था, प्रीस्ट था, है ना। तो एक और स्टोरी इनकी प्यूरिटन कल्चर पे अटैक है, एंड दैट इज यंग गुडमैन ब्राउन। सो दोज वर सिंसियरली सीकिंग दिस पेपर दिस टाइम इन मे, दे शुड रीड दिस स्टोरी। आप इसको लिख लीजिए एक बार, यंग गुडमैन ब्राउन, 1835 में पब्लिश हुई थी। शॉर्ट स्टोरी है, वर्ल्ड फेमस है। मुझे टिप्स पर इसलिए भी रहती है क्योंकि मैं हर साल पढ़ाता रहता हूँ, 2-2 बार नेट करवाता हूँ बच्चों को, तो मुझे याद है। लेकिन ये हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की कोर्स में भी है, पोस्ट ग्रेजुएशन में, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद आ जाते हैं कि उनके जो सिग्निफिकेंट नॉवल में द स्कारलेट लेटर, इसकी डेट ऑफ पब्लिकेशन पता होनी चाहिए, 1850। स्कारलेट लेटर का जो सिग्निफिकेंस है वो पता होना चाहिए, ठीक है। स्कारलेट लेटर, स्कारलेट इज अ वर्ड, देयर इज अ कलर सिंबोलिज्म एंड इमेजरी द राइटर हैज यूज्ड, एंड इमेजरी कई प्रकार की होती है, आपको मालूम होना चाहिए। तो वो लेक्चर तो मैं अभी नहीं दूंगा, प्रोसोडी का, लाइक हाउ इमेजरी वर्क्स, एंड हाउ इट अफेक्ट्स द साइकी ऑफ अ रीडर, एंड हाउ दिस राइटर वाज इन्फ्लुएंस्ड विद द इंग्लिश राइटर्स एंड ऑल। बट अभी आपको इसका याद रखना है कि स्कारलेट कलर इज रिलेटेड टू सिन। स्कारलेट कलर जो गहरा लाल रंग होता है, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू ब्लड, ओके। And blood and sin and blood, and that is also related to the rejuvenation, because blood imagery in Christianity is somehow associated with, चलो बताइए किसी को पता हो तो कि कैसे ब्लड इमेजरी को हम लिंक कर सकते हैं अगर हमें कोई ऐसा टफ क्वेश्चन पूछे। बिकॉज समहाउ जो हेस्टर प्रिन है उसको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इन्वॉल्व होते हुए दिखाया है डिमिसडेल के साथ, जो कि एक प्रीस्ट है, ठीक है। और प्यूरिटन कल्चर में वो, क्योंकि औरतों के अधिकार बिल्कुल नहीं थे, आपको मालूम होना चाहिए, और इस तरह की कोई भी औरत है उसको वो लोग विच कह दिया करते थे या उसको बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दिया करते थे, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन पूछा है, मेरी तरफ आपकी तरफ से कोई आंसर नहीं आ रहा है, इसका मतलब है आपको नींद आ रही है। चलिए
कोई बात नहीं, बिस्तर में सोते हुए आप लोग मेरा लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो स्कारलेट लेटर में स्कारलेट जो वर्ड है बच्चों, दैट कैन बी क्रिश्चियन इन द रिवाइविंग सेंस ऑल्सो, एंड दैट इज द रीजन एक बार नेट में क्वेश्चन आया था कि हाउ द राइटर हैज डिपिक्टेड द चेंजिंग सिंबॉलिज्म इन द नॉवल, दैट इन द बिगिनिंग रेड कलर, क्योंकि उसके ना गाउन के ऊपर एक रेड कलर ए, ये भी क्वेश्चन बन रहा है कि ए का मतलब एडल्टरस होता है इन द वेरी बिगिनिंग, बट ए से एंजल भी होता है। तो कैसे वो औरत अपने व्यवहार से, बिकॉज वो उसको गांव के बिल्कुल बाहर रख देते हैं क्योंकि उसके गोद में भी बच्ची है फॉल, तो वो उसको पालती है और गांव के लोगों का सीना पिरोने का काम करती है। शी बिकम्स अ सीम स्ट्रेस, और सीम स्ट्रेस का मतलब होता है दर्जी का काम करने वाली औरत। और फिर उसमें दिखाते हैं कि कैसे धीरे धीरे यू नो जो नेक्स्ट जनरेशन आती है वो उसको एक बहुत ही अच्छी औरत समझती है। तो सिग्निफिकेंस बदल जाता है कि इन व्हाट सर्कमस्टेंसेस कोई लड़की यू नो आउट ऑफ मैरिज जाती है, तुमने कैसे उसको जज कर लिया। सो यू नो देयर आर मेनी इश्यूज हैव बीन रेज्ड एंड दिस इज द रीजन दिस नॉवल इज वेरी फेमस। तो मैं नॉवल पे तो लेक्चर दे नहीं सकता, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हाउस ऑफ द सेवन गेबल्स। क्या क्लास में किसी को गेबल्स का मतलब पता है? क्लास में कई बार वो पूछ लेते हैं इस तरह के क्वेश्चंस पे। द हाउस ऑफ द सेवन गेबल्स, एनीबडी इन माय क्लास हु नोज द मीनिंग ऑफ गेबल्स? अच्छा, आपने देखा है महाराष्ट्र में, केरल में, साउथ इंडिया में एक खास किस्म के घर होते हैं जिसमें ऊपर केलू की छत बनती है। तो वो जो इस तरह की छत होती है ना उसको गेबल्स कहा जाता है, ठीक है, ऐसी। तो द हाउस ऑफ द सेवन गेबल्स, ये भी एक थोड़ा सा क्रिश्चियनिटी को लिए हुए, थोड़ा सा प्यूरिटनिज्म को अटैक करते हुए थोड़ी सी गॉथिक स्टोरी है, ठीक है। और मॉबी डिक का फर्स्ट सेंटेंस में कल बता चुका हूं, कॉल मी इस्माइल। अब इसमें पिकॉइड नाम का जो जहाज है, व्हाइट वेल है, हैब नाम का जो अब उसके अंदर आपको अगर मैं थोड़ा डिटेल में ले जाऊं कि भाई मॉबी डिक को कैसे समझा जाए। अब नेट की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट हैं उनका लेवल देख करके मुझे कई बार बहुत दुख भी होता है कि बच्चे नेट की तैयारी करने आ जाते हैं लेकिन वो अपना होमवर्क बिल्कुल नहीं करते हैं, उनको ये इच्छा भी जागृत नहीं होती। मुझे क्रिटिसाइज बिल्कुल मत करना, आई एम नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, आपकी एज का नहीं हूं मैं, और मैं अथॉरिटी है मेरी इस सब्जेक्ट पे, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि मुझे आपको पैम्पर नहीं करना है किसी भी स्टूडेंट में। मैं पैम्पर भी नहीं करता हूं, मैं कभी भी इसलिए खुश नहीं करता हूं कि हाँ ये मेरे यहां एडमिशन ले लेगा। उनको मालूम होना चाहिए कि क्यों सिलेक्शन नहीं हो रहे हैं नेट के अंदर। मैं सभी स्टूडेंट को कहना चाहता हूं, क्योंकि आपने नोटिस किया है स्टूडेंट एक तो सिस्टमेटिक कोचिंग नहीं लेता, दूसरा सिस्टमेटिक पढ़ाई नहीं करता, तीसरा उसको कहीं ना कहीं से कुछ बस मैटर मिल जाए, उस मैटर को भी वो नहीं पढ़ता। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा इतने सालों का एक्सपीरियंस है कि जो स्टूडेंट मेरे यहां से नेट जेआरएफ करते हैं हर साल, वो अलग किस्म के स्टूडेंट्स होते हैं। मैं ये बात क्यों कहना चाह रहा हूं बीच में, क्योंकि जब हम मॉबी डिक की बात करते हैं तो मुझे इस वक्त भी पूरा शक है कि अ राइटर, अ नॉवल हु हैज कॉन्स्टेंटली बीन आस्क्ड इन द एग्जाम, क्या कोई स्टूडेंट है जिसने चैप्टर वाइज समरी भी पढ़ी हो? तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब समरी नहीं पढ़ सकता तो नॉवल कैसे पढ़ेगा। और मैं आपको बैठ गया 3 बार जेआरएफ, 15 बार नेट आदमी, ये इतनी मोटी बुक लेकर के पढ़ करके इसमें से ढूंढ करके पॉइंट्स बनाकर आपको पढ़ा रहा हूं। लेकिन ध्यान रहे, चैनल, कल भी मैं बात कर रहा था इस बारे में कि चैनल कुछ भी रखो, डेस्टिनेशन जहां है वहीं रहेगी। आपको चाहे कितने चैनल चेंज कर लो, आपको हार्डवर्क के बिना ये सक्सेस मिल नहीं सकती, ठीक है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं हर बार एग्जाम में जब बैठता हूं ना तो मेरे होश उड़ते हैं। मैं आई कांट प्रिटेंड लाइक द अदर यू नो सम ऑफ द टीचर्स इन दिस फील्ड, दे हु से लाइक यू नो आई एम डैम इंटेलिजेंट। आई नेवर से दैट, बिकॉज जो जो उम्र बढ़ती है आपको ऐसा लगता है कि इंटेलिजेंस कुछ नहीं होती है, हार्ड वर्क ही इंपॉर्टेंट होता है। इंटेलिजेंस लिटरेचर में काम नहीं करती, बिकॉज आपको नाम कैसे याद हो जाएगा? आपको नाम के लिए तो उसको लिखना पड़ेगा ना, आपको स्टोरी के अंदर की बात कैसे पता होगी? दे विल बी आस्किंग यू क्वेश्चंस फ्रॉम द स्टोरी, कम ऑन, फ्रॉम द नॉवल, फ्रॉम द प्लॉट। वो जब तक आप केवल सबटाइटल, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, फादर ऑफ दिस, फादर ऑफ दैट, इन्हीं की तैयारी करते रहोगे तो फिर वो एनालिटिकल क्वेश्चंस के आंसर कौन देगा? जिस तरह के क्वेश्चंस वो पिछले 4 नेट में पूछने लगे हैं। तो अभी भी टाइम है, जो सीरियस है वो सीरियस और हो जाए, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। फिर उनको नेट क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। ये मैं आपको एक कड़वी गोली दे रहा हूं, एक डोज है ये, जो कई स्टूडेंट के बहुत काम आएगा। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे पास जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स जुड़े हैं
मेरा एक्सपीरियंस बड़ा गंदा रहा है ऑनलाइन का, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स उनमें बड़े ब्रिलियंट रहे हैं और वो बहुत अच्छे तरीके से स्टडी कर रहे हैं और टेस्ट दे रहे हैं रेगुलरली। और जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सारा स्टडी मटेरियल यूज किया है, उनको कोई नहीं रोक सकता जेआरएफ करने से। उसका कारण यही है, सबसे बड़ा कारण है कि समटाइम्स मैं उनको पूरी पूरी एंथोलॉजीज खरीदने के लिए कह देता हूं एंड दे लिटरली गो थ्रू दीज थिंग्स। तो केवल टिडबिट से, हिट एंड ट्रायल से, वहां कुछ मुफ्त में अटेंड किया, यहां कुछ मुफ्त में लिया, इससे कोई नेट क्लियर मैंने तो नहीं देखा किसी का होते हुए। आई एम सो सॉरी फ्रेंड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, मैं मॉबी डिक के बारे में कह रहा हूं। अगर आपको थोड़ी मोटिवेशन मिली हो तो आप एक काम करें, आज रात को बैठें और मॉबी डिक को इंटरेस्टिंग तरीके से, इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा लेकिन आप पढ़िए। मैं इसको थोड़ा सा आपको समझाता हूं कैसा नॉवल है। अच्छा, एक बात बताओ, एक आदमी है जिसको एक बार पहले एक एक्सपीडिशन पर एक व्हेल उसका पैर खा जाती है, पर वो इतना जिद्दी है कि वो एक हाथी दांत पता ना, बहुत मोटा होता है, उसकी एक टांग लगवा लेता है और उसकी जो इच्छा शक्ति है, उसका जो साहस है, उसको कोई रोक नहीं सकता और वो फिर से एफर्ट करता है और बाद में उस व्हाइट व्हेल को मारता है। अब आप अंदाजा लगाओ कि देयर इज अ ग्रेट ग्रेट सिंबॉलिज्म। व्हाइट व्हेल को अगर आपको सिंबॉलिक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई वो किसने, ये मैंने शॉर्टेस्ट समरी बता दी है। अच्छा, कॉल मी इस्माइल में भी बहुत कुछ है। कितने स्टूडेंट्स हैं क्लास में, कुछ तो बोलो यार, कुछ तो लिख करके मुझे बताओ। कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्ड इस्माइल पता है क्रिश्चियनिटी में? अगर नहीं पता है तो नो लिखिए, पता है तो यस लिखिए, ताकि मैं बताऊं, क्योंकि मैं वैसे ही पढ़ाना चाहता हूं जैसे मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूं। ऑनलाइन केवल मोड है। ओके, ऑनलाइन मोड में आपने देखा नहीं, लोग 15-15 मिनट के वीडियो डालते हैं जैसे कोई बहुत बड़ी चीज दे रहे हो। पढ़ाई के तरीके से होती है और हार्डवर्क का कोई ऑल्टरनेट मैंने तो देखा नहीं अभी तक लाइफ में। आई एम सॉरी। कोई मुझे लिख के बताए इस्माइल का मतलब पता है क्या, या इस्माइल का सिग्निफिकेंस क्रिश्चियनिटी में क्या है? सुमंत का आंसर आया मेरे पास, नो, विद अ हार्ट ऑल्सो। ठीक है, एक आंसर आया मेरे पास। बाकी लोगों को जहमत उठाने की जरूरत महसूस नहीं हो रही है कि हम नो भी लिख दें। कोई बात नहीं। समटाइम्स देयर आर साइलेंट वॉचर्स ऑल्सो। देखो, एक क्रिश्चियनिटी की कहानी आपको सुननी पड़ेगी, जरूरी है, क्योंकि वो सिग्निफिकेंस इस पूरे नॉवल में है। फिर जब आप स्टोरी पढ़ोगे तो आपको वो समझ में आएगी। अमेरिका का मैं आपको थोड़ा सा, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अमेरिकन लिटरेचर, तो फिर उस क्लास को हम यही खत्म कर देंगे आज, कल लेंगे बाकी की क्लास। अमेरिकन लिटरेचर का जो बेसिक है, हर कंट्री का अपना एक लिटरेचर होता है, ठीक है, और उसकी अपनी खुशबू होती है, उसका अपना एक सिग्निफिकेंस होता है, उसका खुद का एक प्लॉट लाइन होता है, एक आर्केटाइपल पैटर्न होता है। क्या होता है? आर्केटाइपल पैटर्न। उस आर्केटाइपल पैटर्न को इजीली पहचाना जा सकता है। जैसे मैंने कैनेडियन लिटरेचर में पीएचडी किया, तो नाउ आई कैन रिकॉग्नाइज के आर्केटाइपल पैटर्न कनाडा का क्या है। जैसे अगर आपने कभी अमेरिका के उस प्ले के बारे में पढ़ा हो, या उस प्ले को पढ़ा हो, द ग्लास मिनेजरी, तो आपने देखा होगा कि वो मेमोरी प्ले है, और प्ले जब स्टार्ट होता है तो एब्सेंट फादर की एक फोटो लगी हुई है। ही इज अ कैरेक्टर इन द प्ले बट ही इज एब्सेंट। और जो हमारा प्रोटैगोनिस्ट है, वन हु इज द इंटरलोक्यूटर ऑल्सो, हु टेल्स अस दैट माई फादर डिड नॉट परफॉर्म हिज ड्यूटी एंड लेफ्ट अस। वो जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है, लेकिन वो फादर फिगर एब्सेंट है। अब आप कोई भी अमेरिकन नॉवल उठा लीजिए, या तो वो क्वेस्ट नैरेटिव होता है, लिखिए अपनी कॉपी में, क्या होता है? क्वेस्ट नैरेटिव। यानी कि जैसे हकलबरी फिन्स उठा लो, तो आप क्या देखोगे? एक लड़का है जिसको उसका जो फादर है वो तो छोड़ चुका है, और वो उसकी प्रॉपर्टी या उसके पास जो पैसे उसको लेना चाहता है, शराबी है, और उसकी जो ग्रैंड मदर नैनी है वो उसको सिखाना चाहती है मैनर्स, लेकिन वो जरा सा लड़का तंबाकू पीता है और वो कल्चर में ढलना नहीं चाहता। दिस इज अमेरिकन स्पिरिट। क्योंकि ये कौन है? अमेरिका कल्चर्ड कंट्री से निकाले गए लोग हैं। ये सेटलर्स अपने आप नहीं बने थे। मैंने कल की क्लास में बताया था, इनको चार्ल्स सेकंड ने बाहर निकाल दिया था, क्योंकि ये प्यूरिटन्स थे, ये राजा को नहीं मानते थे, तो डिस्कार्डेड लोगों की कैटेगरी में आते हैं। तो ये कल्चर को पसंद नहीं करते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। तो वो ही सेज बिग नो टू कल्चर, to be acclimatized according to the culture, and one who says no that I won't be
cultured person. Then he takes a raft and with the help of a Negro friend. क्योंकि आप देखिए जब हम अब्राहम लिंकन पढ़ते हैं या वॉल्ट विटमैन पढ़ते हैं तो अमेरिकन कल्चर इज अ मिक्सचर ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट. ब्लैक और व्हाइट गाना आप माइकल जैक्सन का सुनिए, आपको पता चल जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं. तो उन दोनों की जो भूमिका है, तो इसका मतलब जैसे ही अमेरिकन लिटरेचर हम देखेंगे, ब्लैक पीपल आर प्रेजेंट, either they are silent or they are very much participating. मुझे यहाँ पर एक बात याद आ रही है, टोनी मॉरिसन का एक क्वेश्चन आया था. टोनी मॉरिसन नोबेल प्राइज विनर, आपको याद है, आफ्रो अमेरिकन राइटर, प्लेइंग इन द डार्क. देयर शी इज टॉकिंग अबाउट इट. देयर दे आस्क्ड अस अ क्वेश्चन that what is the subtitle of this prose work. It's a work of criticism. क्या नाम लिया मैंने, playing in the dark. उसमें she has been questioning these white writers that why you have not been writing about the black characters. So that is a different issue. But somehow जैसे अमेरिकन लिटरेचर को हम पढ़ते हैं तो एब्सेंट फादर फिगर, कल्चर को नो बोलना, इंडिविजुअलिटी, अपने आप को वो तो एक नॉवल है सुमंत कुमार बिलवड, तो टार बेबी है, द ब्लूएस्ट आई है, बहुत सारे नॉवेल्स हैं उनके. तो मैं बात कर रहा था कि अमेरिकन लिटरेचर का आर्केटाइपल पैटर्न कैसे दिखेगा. फादर फिगर नहीं होगा उसमें, क्योंकि उन्होंने अमेरिका ने इंग्लैंड को छोड़ा, तो यानी उनका जो फादर है, फादर मतलब मदर नहीं, मदरलैंड को वो फादर बोलते हैं, तो फादर फिगर एब्सेंट होगी उनके नॉवेल्स के अंदर. वो घर छोड़ देता है हीरो, वो अपने आप को तलाश कर रहा है, बिकॉज अमेरिका जब इंग्लैंड से अलग हुआ तो वो अपनी रूट्स तलाश रहा है. और एमरसन ने हमेशा सेल्फ रिलायंस, ऐसे में आपको मालूम है उन्होंने लिखा है कि भाई तुमको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है इंग्लैंड की तरफ, तुम्हारा खुद का कल्चर क्रिएट करो. फादर जो उनके कल्चर के हैं अमेरिकन लिटरेचर के. तो इससे क्या पता चलता है कि अमेरिकन लिटरेचर की अपनी खुद की कैरेक्टरिस्टिक है. और फिर धीरे धीरे वो और डेमोक्रेटिक होते चले गए. जब स्लेवरी खत्म हो गई, धीरे धीरे उनके लिटरेचर में ये सब चीजें भी आने लगी. तो अमेरिकन लिटरेचर में क्वेस्ट हो सकता है, या तो कोई हीरो किसी फ्रेंड को लेकर निकला है और वो कुछ ढूंढ रहा है, मिसिसिपी रिवर से राफ्ट के थ्रू पूरा अमेरिका को वो कवर कर रहे हैं. या जैसे हेनरी जेम्स के नॉवेल्स देखोगे तो दे आर गोइंग बैक टू इंग्लैंड, बिकॉज वो रूट्स तलाश करने के लिए इंग्लैंड जाते हैं. मेरी बातें समझ में आ रही है. या वो विल्डरनेस से, जैसे मैंने लेदर स्टॉकिंग टेल्स का रेफरेंस दिया आपको अभी, या कैचर इन द राई नॉवल आपको मैं कल की क्लास में बात करूंगा. 3 या 4 लेक्चर में मैं अमेरिकन लिटरेचर को कवर करूंगा, 5 लेक्चर भी दे सकता हूं. तो उसमें आपको देखेंगे, आप जब एग्जाम दोगे तो आपको लगेगा हाँ इनमें से रिलेटेड क्वेश्चंस आ गए. तो अमेरिका का अपना एक सिग्निफिकेंस है, समझ रहे हैं आप लोग. और उनका हिस्ट्री, जैसे द ग्रेट गैट्सबी है, तो ग्रेट गैट्सबी में आपने क्या नोटिस किया कि वो बहुत रिच हो गया लेकिन उसको डेजी नहीं मिली, है ना. इसका मतलब है कि अमेरिका, वन हु इज बिकमिंग रिच विथ बाय फॉरगेटिंग इट्स वैल्यूज को भूल करके, और वो रिच बन रहा है तो उसका क्या ट्रेजेडी होगा. ओके, तो इस तरह से अमेरिकन नॉवेल्स में टिपिकल पैटर्न्स हैं. वॉर के नॉवेल्स हैं, एंग्स्ट के नॉवल हैं, एंजाइटी की कविताएं हैं. एमिली डिकिंसन क्या लिख रही हैं कि एमिली डिकिंसन की जब कविताएं हम पढ़ेंगे तो टिपिकल अमेरिकन कविताएं आप, बिकॉज जब हम लोग कई बार एमए में ये लेक्चर देते हैं तो स्टूडेंट पूछता है कि सर हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज दैट दिस इज अमेरिका एंड दिस इज अमेरिकन पोएम, हाउ कम व्हाई इट इज नॉट एन इंडियन पोएम ऑल्सो. तो उसमें फिर हम जब कोई चीजें ढूंढते हैं तो आपको एक रेकरेंट पैटर्न मिलता है. ओके, रेकरेंट इमेजरी मिलती है, रेकरेंट साइकी मिलती है, उससे हम लोग फिक्स करते हैं कि ये अमेरिकन है. ठीक है, तो मैं बहुत ज्यादा नहीं बोल सकता. तो मैं इस्माइल का क्वेश्चन पूछ रहा था आप लोगों से कि बाइबल की जो कहानी है जिसमें एडम और इव के जो बच्चे होते हैं उनमें आगे जाके अब्राहम होते हैं. अब्राहम 100 साल के हो जाते हैं, उनके बच्चा नहीं होता, तो उनकी वाइफ जो है सारा, वो उनको बोलती है कि मेरी जो कॉन्क्यूबाइन है, आई एम सो सॉरी, औरत की कॉन्क्यूबाइन नहीं होती, मेरी जो स्लेव है हैगर, HAGAR, उसको तुम यूज करो, उसके साथ वर्बल शादी कर लो और बच्चा पैदा करो तो हमारा उत्तराधिकारी मिल जाएगा, यू विल गेट एन एयर. तो
अब होता बिल्कुल ऐसे ही है कि वो हैगर के साथ में रहने लगता है एंड देन शी बिकम्स प्रेग्नेंट। लेकिन जब वो बच्चे को पैदा करने वाली होती है, इन बिटवीन सारा भी प्रेग्नेंट हो जाती है। तो अब सारा जो है वो लीगल वेडिड वाइफ है, तो वो क्या करती है, हैगर को निकाल देती है वहां से। कहीं भाई इसका लड़का अगर हो गया मान लो, तो वो राज मांगेगा। तो अब हैगर के जो बच्चा होता है वो विल्डरनेस में होता है, और उसके जो बच्चा होता है उसका नाम इस्माइल होता है, और इसका जो लड़का होता है सारा का, उसका नाम होता है आइजैक। अब आइजैक के खानदान में, या फिर वो बाद में वो कबीले बनते हैं और ये हमेशा लड़ते रहते हैं। यहां से क्रूसेड का रेफरेंस आता है, जिहाद का जो कॉन्सेप्ट समझ में आता है। फिर हम और आगे पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इसमें आगे जाकर के हजरत मोहम्मद साहब इस्माइल के फैमिलीज में पैदा होते हैं, और उसमें आगे जाकर के जो दूसरे पैगंबर जिनको हम क्राइस्ट बोलते हैं, तो वो जो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम की जो लड़ाई है वो हमें समझ में आती है। तो इस्माइल का जो कॉन्सेप्ट है, आप थोड़ा रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि इस्माइल मीन्स अगेन अ डिस्कार्डेड फिगर। Okay, so America has been a discarded figure, one who was sent into the wilderness, and Captain Ahab जो है, how white European का concept है वो whale, और wilderness हो गया यहाँ पे पूरा का पूरा समुद्री इलाका, जिसके अंदर there is chaos, always chaos. Okay, so how can biblical imagery be applied on that? ऐसे करके इस नॉवल को हम समझ सकते हैं। समझ गए? फिर आप स्टोरी पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, फिर हम कल बात करेंगे। आज हम 1850 तक के टॉपिक ले चुके हैं, और कल हम बात करेंगे 1850 के ऑनवर्ड कल की क्लास में। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आज इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं बिल्कुल 10 o'clock।